रील्स देख के टाइम पास कर रहे थे ना। पता है मुझे, फाउंडेशन की एग्जाम आ रही है। टाइम पास मत करो, ये वीडियो देखो जो आपको सिखाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो रेटा अलॉटमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके ICAI मॉड्यूल में से। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अ सेम क्वेश्चन with absolutely the same concept, with the same adjustments, has come for 15 marks in January 2021 CA Foundation exam attempt. उसका भी वीडियो है, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लो सब्सक्राइब, आपका ही फायदा है। Let's take a look at this question. This question is taken straight away from your ICAI study material for CA Foundation और इस क्वेश्चन में है एक प्रिंटिंग मिस्टेक जो हम हाईलाइट करेंगे। देखिए कहा गया है कि JHP is a company with an authorized share capital of rupees 10 lakhs in equity shares of 10 each. If the authorized capital is rupees 10 lakh in shares of rupees 10 each, it means that the number of authorized shares are of course 1 lakh. How? 10 lakh rupees are split into shares of rupees 10 each. That is when you get 1 lakh shares. Now out of this 6 lakh shares have been issued. How can you do that? यार 6 लाख shares में से how can you issue 6 lakh shares? That is where there is a printing mistake. So the printing mistake is that there is an authorized share capital of not rupees 10 lakhs, of rupees 10 lakhs equity shares. So how will it be read? JHP Limited is a company with an authorized capital of 10 lakh equity shares of rupees 10 each. ये रुपीस को आप मिटा दीजिए और ये इन को आप मिटा दीजिए टू मेक द सेंटेंस एक्यूरेट, टू से दैट देयर आर 10 lakh equity shares of 10 each, of which 6 lakhs were issued and fully paid up as on 30th of June 2020. Now the company is proposing to issue further 1 lakh shares with a face value of 10 and an issue price of 14. And the arrangements are application 2 per share, allotment 5 per share including premium, and the final call for the balance. So let us quickly make a small working note to note this down. So we have application. On application stage we have 2 per share. Allotment they are saying is 5 including premium. Please keep this much in mind. It's including premium. This 2 is for the face value. This 5 is face value plus premium and the balance is going to go in the final call. Please keep in mind that the face value is 10, the issue price is equal to 14. Therefore, obviously, security premium is equal to 4, because of which 1 rupee face value is called up on the allotment stage, 2 rupee face value is called up on the application stage, 2 plus 1 is equal to 3. अभी तक आप कॉल कर चुके हो 3 rupees face value. The face value of the share is 10 rupees per share. So obviously on final call you will call up 10 rupees face value. Now the company wants to issue 1 lakh shares, and for this it has received subscription of 355,000 shares. Matlab this is clearly a case of over subscription. It is clearly a case of over subscription. Now these 355 shares are dealt as follows. 5,000 have received an allotment in full. 5,000 received an allotment in full out of the 355,000. So let us make a quick chart for this. 355,000 shares application money was received. Out of this 5,000 are fully allotted. What is the meaning of fully allotted? आपने अप्लाई किया एक शेयर और आपको अलॉट भी हुआ एक शेयर, मींस 5,000 shares are fully allotted to the applicants. Now applicants of 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied. मतलब 2 के बदले में उन्हें 1 शेयर मिला. तो जब भी आपने अप्लाई किया 2 आपको मिला 1, आपने अप्लाई किए 30,000, ऑब्वियसली आपको मिले 15,000 शेयर. यहां पे एक अच्छी सी एडजस्टमेंट है, ध्यान देंगे. No money was returned to these applicants and the surplus on application was used to reduce the amount due on the allotment. Okay, so surplus of application is adjusted in allotment. So on application
30,000 shares paid 2 per share, thereby giving the company 60,000 rupees. The company has taken 60,000 rupees. They are not going to return it. But for these 30,000 shares, they are going to give you only 15,000 shares. इसका एक ही मतलब होता है कि अब 15,000 शेयर के पीछे कंपनी एडजस्ट कर रही है 4 रुपए पर शेयर, जिसमें से 2 रुपया एडजस्ट किया गया है एप्लीकेशन स्टेज पर. Obviously, the balance is going to be adjusted on the allotment stage, and your balance is 2 per share. So it is as good as saying that allotment के 2 रुपए पर शेयर आपने रिसीव किए हैं 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन स्टेज पर. I repeat, this is as good as saying that the application stage is going to record a receipt not just of application money but also towards allotment money. Now, let's go ahead. The balance is obviously, as you can see, this is 35,000. So the balance has to be 3,20,000. I'm very confident that is there in the question, and as you can see, 3,20,000 applicants received an allotment of 1 share for every 4 shares applied. So what happened? You applied for 4 and you received an allotment of 1. So you applied for 320,000. So obviously you received an allotment of how much? 80,000. Now this is an interesting point. 3,20,000 shares के पीछे you have paid rupees 2 per share and the company has received 6,40,000 rupees. How much has the company received? 6,40,000 rupees. But now what does the company say? The company says that we will not give you 3,20,000 shares. We will give you 80,000 shares. Okay. And the money is due on allotment, is retained by the company. Allotment के पैसे ले लिए और एक्सेस जो था वो रिफंड कर दिया. एप्लीकेंट्स फॉर 320 शेयर्स, अलॉटमेंट इज डन 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, मतलब 320 वालों को 80,000 शेयर्स मिले. इन 80,000 शेयर्स के पीछे अलॉटमेंट के पैसे तो ले लिए और उसके आगे का एक्सेस आपको वापस कर दिया. तो चलो, मतलब 80,000 शेयर्स के पीछे हमने कंपनी को 640 दे दी. ये 640 अब 80 में एडजस्ट करने हैं, तो एक शेयर के पीछे वी आर गोइंग टू एडजस्ट 8 रुपीज. हाउ मच इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन? 2. How much will be adjusted on allotment? Whatever is the amount due on allotment, which is 5. So we are going to adjust the entire 5 here on allotment. Application and allotment have been adjusted. Total 2 plus 5, 7 rupees have been adjusted and 8 rupees have been received. So what is going to happen? Excess. What is the excess here per share? It is 1 per share. This is going to be refunded for how many shares? Obviously for 80,000 shares. The excess is going to be refunded. With this, we are in the position to start passing the journal entries. The question clearly states that the application money has been received on the 1st of July, the allotment is made on the 10th of July, and the final call balance comes in on 30th of April. Comes in when? On 30th of April. Alright, over here also you need to appreciate that 1st of July 2020, 10th of July 2020 and 30th of April 2021. You need to be careful about these dates while passing. Please don't make a mistake. So the first entry is going to come on 1st of July 2020. This entry is going to be for the purposes of application money received. क्या है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री इज वेरी सिंपल. कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. आपको मिले हैं 3,55,000 एप्लीकेशंस, जिनके पीछे आपको मिला है 2 रुपया पर शेयर ऑन एप्लीकेशन स्टेज. ऐसा करके आपको मिले हैं 7,10,000 रुपए एप्लीकेशन के स्टेज पर. अब आएगा 10 जुलाई 2020, जिसमें ये एप्लीकेशन के पैसे अब ट्रांसफर होंगे कैपिटल में. तो पास कीजिए एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. यहां लिख दीजिए 7,10,000. पर अब आएगी बड़ी बात
क्योंकि इसमें होगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर विल बी फॉर द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विच वाज 1 lakh multiplied by 2 per share received on application, because we are issuing 1 lakh shares and we are receiving 2 per share on application. 2 lakh rupees outrightly from application has to go into capital. Now we know that a certain amount of money adjust हो रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए भी. अब ये जानना है कि अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट हो रहे हैं. इन 5,000 वालों का कोई भी एडवांस नहीं है तो इनको कोई अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट नहीं आएगा. अब देखिए 30,000 के पीछे 2 पर शेयर लिया गया था, 60,000 रुपए कंपनी को दिए गए थे. कंपनी ने कहा 30,000 नहीं, आपको 15,000 शेयर मिलेंगे. तो शेयर होल्डर ने कहा तो फिर हमारे 2 रुपए नहीं, हमारे 4 रुपए पर शेयर बनते हैं. कंपनी ने बोला ठीक है. कंपनी ने बोला ठीक है, इस 4 में से 2 तो आप एप्लीकेशन का दे चुके, 2 आपके अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देंगे. मतलब 15,000 शेयर्स के पीछे 2 रुपया एडजस्ट अलॉटमेंट का एडजस्ट हो रहा है. अब यहां देखें 320 शेयर्स को अप्लाई किया था 2 रुपया देके, 640 आपने कंपनी को दे दिए रुपए. ये 640 रुपए आपने कंपनी को दे दिए. कंपनी ने आपको 3,20,000 शेयर्स के बदले में सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर्स दिए. तो जो आपने 2 रुपया पर शेयर किया, कंपनी ने उसे एक्नॉलेज किया एज 8 रुपीज पर शेयर, क्योंकि उन्होंने आपके 640 रिसीव किए. 8 में से 2 एप्लीकेशन को गए और 8 में से ये 5 अलॉटमेंट में आए और ये 1 रुपया पर शेयर फॉर 80,000 शेयर रिफंड हुआ. तो अलॉटमेंट में यहां पर एडजस्टमेंट आएगी 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 80,000 shares multiplied by 5. So this comes to a total of 4,30,000. To bank will be credited as money goes out, क्योंकि आपने 80,000 शेयर्स के पीछे 1 रुपया पर शेयर रिफंड किया है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. ये सबसे अहम एंट्री थी इस क्वेश्चन की. सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इस क्वेश्चन की ये थी. अब हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू. अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 10 जुलाई को ऑन द वेरी सेम डे. तो उसी दिन पे अलॉटमेंट को ड्यू किया जाएगा ऑन 10th of July 2020. याद रखें अलॉटमेंट को ड्यू करने के साथ साथ इसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम बैठा हुआ है. Do not forget that there is security premium here. So pass the entry carefully. The entry will be equity share allotment account debit to equity share capital account and to security premium account. You need to understand that 1 lakh shares are due on allotment stage at the rate of 5 per share. ये 5 के अंदर से 1 रुपया फेस वैल्यू है और 4 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम. तो ऑफ कोर्स कैपिटल में जाएगा 1 लाख शेयर्स के पीछे 1 रुपया पर शेयर, और यहां मैं क्रेडिट में डाल दूंगा 1 लाख. सिमिलरली सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए जाएगा 1 लाख शेयर्स के पीछे 4 रुपया पर शेयर और क्रेडिट में डाला जाएगा 4 लाख. ये हो गए आपके अलॉटमेंट ड्यू. और इसी दिन पर आपको मिल रहे हैं अलॉटमेंट के पैसे. इसी दिन पर आपको मिल रहे हैं अलॉटमेंट के पैसे. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली साउंड नहीं होते वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे अच्छा तो ऐसा है कि अलॉटमेंट जो है यहाँ पे 1 लाख इंटू 5 लाख, मतलब 5 लाख यहाँ पे डेबिट में है. ओके 5 लाख यहाँ पे डेबिट में है और यहाँ पे ना हम लोग ने 430 को ना क्रेडिट में डाल दिया. अच्छा चलो क्रेडिट डेबिट को बैलेंसिंग अप्रोच करते हैं और यहाँ पे मैं 70,000 रुपए लिख देता हूँ. ये एक कॉन्सेप्चुअली अनसाउंड स्टूडेंट करेगा. But with Apex Academics, you do not have to be conceptually unsound. Your concepts are going to be bare bones strong. Pay attention to this.
अलॉटमेंट पर ड्यू थे 5 रुपए। इन 5,000 शेयर्स, आई बेग योर पार्डन, इन 5,000 शेयर्स ने पूरे के पूरे 5 पर शेयर अलॉटमेंट के भर दिए, मतलब इन्होंने 25,000 रुपए भरे हैं, क्योंकि इनका कोई एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा नहीं आया था, एक के बदले में एक देके इन्होंने एप्लीकेशन पे जितने देने थे उतने ही दे दिए, तो उन्होंने भी अलॉटमेंट पे भी जितने देने थे उतने ही दे दिए। 5,000 शेयर्स के पीछे 5 रुपया पर शेयर, तो इन्होंने 25,000 दिए। रही बात इन 30,000 की, 30,000 के बदले में पहले तो मिले मुझे 15,000, 15,000 के पीछे 2 रुपया मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर, तो ऑब्वियसली अब मुझे 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा 15,000 शेयर्स के पीछे। ऐसा करके मुझे 45,000 रुपीज मिलेंगे इन कैश ऑन अलॉटमेंट। रही बात इन 3,20,000 एप्लीकेंट्स की जिनको मिले थे 80,000 शेयर्स, वो तो एप्लीकेशन पे ही पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा दे चुके हैं, तो इनसे कुछ भी अब अलॉटमेंट स्टेज पे आना बाकी नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे पूरा पैसा दे चुके हैं। तो इस 70,000 का ब्रेकअप क्या है? 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर एंड 15,000 शेयर्स at the rate of 3 per share. So this is 45 plus 25, which takes you to 70,000. A very, very important entry for allotment amount received. Very, very important. The next entry is happening on the 30th of, let us check out what is the date. The date is 30th of April 2021. What is the date? 30th of April 2021. Okay. याद रखिए ये अगले साल में हो रहा है, साल यहाँ पे खत्म हो गया, साल यहाँ पे खत्म हो गया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो अब क्या करेंगे? अब फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल कॉल ड्यू? इट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे? 1,00,000 शेयर्स थे, और फाइनल कॉल पे कितना ड्यू था? 7 रुपया ड्यू था। वो कैसे? 2 रुपए फेस वैल्यू के एप्लीकेशन पर, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 4 रुपए का प्रीमियम, तो 1 रुपया फेस वैल्यू, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलके 2 और 1 3 की फेस वैल्यू बन गई, 2 और 1 3 की फेस वैल्यू बन गई, टोटल फेस वैल्यू 10, तो ऑब्वियसली 7 ये यहाँ पे फाइनल कॉल पे आपको मिल जाने चाहिए। फाइनल कॉल में कोई एरियर्स है क्या? एक बार देख लेते हैं। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, मींस देयर इज नो कॉल्स इन एरियर्स। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स नहीं है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो दिस इज 7 lakhs इन द डेबिट एंड 7 lakhs in the credit, right? Now on the 30th of April you are going to receive your money for the final call. Pass the journal entry, bank account debit to equity share फाइनल कॉल अकाउंट, एंड ऑफ कोर्स पूरे के पूरे 7 लाख रुपए आपको मिल चुके हैं, और इसी के साथ साथ ये सम भी खत्म हो चुका है। और याद रखिए इसका कार्बन कॉपी सम 15 मार्क्स का जनवरी में आया था। ऑफ कोर्स थोड़े नंबर्स चेंज किए गए थे। जैन 2021 में ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आया था। इस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, द लिंक इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल। पता है मुझे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, क्या करें? कर दीजिए प्लीज, थोड़ा हमारा भी भला, थोड़ा आपका भी भला। अगर आपको जानना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाजर का हलवा और गजरेला, आप देखिए मास्टर शेफ, रील्स देखिए। पर अगर आपको फाउंडेशन पास करना है, अगर आपको सीए बनना है, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा कंटेंट देखिए, क्योंकि इशू ऑफ शेयर चैप्टर आपके लिए बिल्कुल फ्री इस वीडियोस के मीडियम से इस चैनल पर अवेलेबल है। ऑल द वीडियोस इंडेक्स इज अवेलेबल फॉर इशू ऑफ शेयर चैप्टर। प्लीज 1 by 1 वॉच इट। इसके बाद यू आर सपोज टू वॉच द जनवरी 2021 क्वेश्चन। लेट अस क्विकली टेक अ कर्सरी रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 लाख इक्विटी शेयर्स थे, जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, आप वीडियो को स्क्रॉल करके शुरुआत में देख सकते हो। अब 10 लाख शेयर्स में से 6 लाख इशू हुए थे, 1 लाख शेयर्स इशू करने थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 14 रुपए का इशू प्राइस, तो ऑब्वियसली 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया मतलब 1 + 4 प्रीमियम,
अलॉटमेंट पर बैलेंस मतलब ये 1 और ये 2 3 मतलब 7 रुपया फेस वैल्यू, फाइनल कॉल पे बैलेंस्ड। 1 लाख शेयर्स इशू किए गए थे, 355 3,55,000 एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, 5,000 आर अलॉटेड इन फुल मींस 1 for 1, 30,000 are allotted 2 for 1 means 30,000 will get 15,000 shares. For these 15,000 shares, whatever is the surplus that you are receiving on application is going to be adjusted against allotment, clearly given in the question. 320 shares have applied for their shares. 4 applications are getting 1 share, so 320 will get 80,000 shares. Let's take a look at the working. ये 355 शेयर्स आपको देंगे एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा। तो ये 30,000 शेयर्स आपको देंगे 2 रुपए पर शेयर, 60,000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन ये 30,000 के पीछे आपको मिलेंगे सिर्फ 15,000 शेयर, विच शोज दैट फॉर 15,000 शेयर्स टू बी अलॉटेड नाउ 4 पर शेयर हैज टू बी एडजस्टेड, बिकॉज ऑफ विच 2 इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन एंड 2 इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। नाउ 2 is adjusted on allotment, which shows you that it has been received on application stage. 320 were applied, 4 के बदले में 1 मिला, 3 20 के बदले में 80 शेयर्स के पीछे आपको मिल रहे हैं 640, मतलब 8 रुपया एडजस्ट करना है। 8 रुपया एडजस्ट करने पर एप्लीकेशन के 2 तो निकल गए, अलॉटमेंट के 5 निकल गए और एक जो एक्सेस था वो रिफंड कर दिया गया है। और इसी तरीके से ये जो आपकी दूसरी एंट्री है वो खड़ी हो जाती है कि 15,000 into 2 and 80,000 into 5 is received of allotment on application. Very very important, very very important। और ये 80,000 रुपए आपके रिफंड हो जाते हैं। नाउ ऑन अलॉटमेंट स्टेज आपको कितने पैसे मिलेंगे? अलॉटमेंट स्टेज पे ये 5,000 के पूरे 5 मिल जाएंगे और ये जो 5 ड्यू थे इसमें से 2 तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ले चुके हो, तो बचे हुए जो 3 है वो आपको मिलेंगे अलॉटमेंट स्टेज पर। और इसीलिए ये एंट्री यहां पे पास की जाती है और इस 70,000 का ब्रेकअप आपको यहां पे अवेलेबल कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन टू दिस important sum. Follow Apex Academics for timely updates on your CA Foundation examination. I wish you the best of luck. Next you are going to watch the exam problem of Jan 21. Keep watching, keep subscribing, keep sharing and keep following. Bye bye.